ہم سب جتنے ہیں سب بریلی ٹناٹن ہے، سنی ہے نا، سب بریلی ہے، تو بریلی پر فخر کیجیے کہ بریلی شہید کی عزت ہمیں شاہ بڑی کی جاتی ہے، بریلی شہر کی عزت ہمیں شاہ بڑی کی جاتی ہے، بریلی شہر کی عزت ہمیشہ بڑھتی جاتی ہے، امام احمد رضا ایسا قرینہ چھوڑ آئے ہیں، امام احمد رضا ایسا قرینہ چھوڑ آئے ہیں، واپس گئے سبحان اللہ اور پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ گھبرا رہی توجہ کے ساتھ سننا، انشاءاللہ آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا، بالکل آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ اے مسلمان میری طرف دیکھو، آپ کو میں دیکھوں، آپ مجھے دیکھو، اے مسلمان اس وقت اسٹیج میں ہیرو آ گیا ہو، آپ سب پکچر کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیے، اس لیے کہ ہیرو جیسا جیسا کرتا ہے اس کی ایکٹنگ کو آپ دیکھا کرتے ہیں۔ اس وقت ہیرو میں ہوں، میرے ہاتھ کو دیکھا کرو، آپ کے ہاتھ کو میں دیکھوں گا، آپ میرے چہرے کو دیکھو، میں آپ کا چہرہ دیکھوں، آپ مجھ سے ملاقات کرو، میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ اے مسلمان یہ موقع غنیمت ہے، شمس الدین نعمانی آپ کو بار بار نہیں ملیں گے اور آپ بھی شمس الدین نعمانی کو بار بار نہیں ملیں گے، یہ موقع غنیمت ہے۔ اے مسلمان جو دعائیں کرتے کرتے اب پریشان ہو گئے، بڑی بڑی عبادت گاہوں میں قبول نہیں ہوئی، مسجد میں دعا کیے قبول نہیں ہوئی، میناروں میں دعا کیے قبول نہیں ہوئی، مساجد میں دعا کیے قبول نہیں ہوئی، لیکن میرا یہ چیلنج ہے، میرا عقیدہ ہے اسی جگہ آپ سب کی دعائیں قبول ہو جائے گی۔ تو یہ میلاد شریف کرنا شرک و بدعت نہیں، لوگ کہتے ہیں وہابی دیوبندی آج کا کہتا ہے کہ میلاد کرنا شرک ہے، میلاد کرنا یہ بدعت ہے۔ نبی کی میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے اور کہاں نہیں لکھا ہوا۔ اے مسلمان ایسی حدیث سنا دوں گا بالکل وہابی لمبے ہو جائیں گے۔ تو حوالہ نوٹ کیجئے، مشکات شریف، زور سے بولو، مشکات شریف صفحہ 513، صفحہ نمبر کتنا؟ زور سے بولو، 513 کی حدیث پاک، باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان ابی صابان ان العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لا منجدل فی الدینتی وساخبرکم اول امر دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ رؤیا ام التی رأت حینا ودعتنی وقد خرج لها نور ادعالها منہ قصور الشام۔ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کون فرماتے؟ زور سے بولو، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، کیا فرمایا؟ زور سے بولو، او میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، آج میں تم کو اپنی میلاد سناتا ہوں۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، آج میں تم کو اپنی میلاد سناتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وبشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، رؤیا ام التی رأت حینا ودعتنی وقد خرج لها نور اضعالها من قصور الشام، اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں، جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا تو میری ماں کی نگاہیں ملک شام کی طرف اٹھی، جس سے ملک شام کے تمام محلات روشن ہو گئے۔ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہیں، کتنی باتیں؟ زور سے بولو، چند باتیں معلوم ہوئی کہ آج کا خرہ بولتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، وہ پگلا ہے،
वो बुढ़वा है, वो पगले को पता नहीं है, क्योंकि हदीस वो पढ़ता है लेकिन दिल में खबीस बिठा के पढ़ता है, तो कहाँ से हदीस समझ में आएगी। इसलिए कि हदीस समझने के लिए आला हजरत जैसे शख्सियत की जरूरत है, हदीस को समझने के लिए मुफ्ती आजम जैसे शख्सियत की जरूरत है, हदीस को समझने के लिए मुजाहिद मिल्लत जैसे शख्सियत की जरूरत है, हदीस समझने के लिए आशिक रसूल होना शर्त है। आशिक रसूल हो के अगर समझेगा तो हदीस समझ पाएगा, वरना अहले खबीस जिसके सीने में शैतान का वसवसा हो वो हदीस क्या समझेगा। वो खुद खबीस है तो उसका बाप नहीं समझ पाया, उसके दादा समझ ना पाया, उसके दादा समझ ना पाया, क्या वो हदीस समझेगा? हरगिज नहीं समझेगा। एक जगह कहता है मुझको मौलाना शमसुद्दीन नमानी, एक बात बताइए, जो अहले हदीस है वो भी तो हदीस पढ़ता है, आप भी हदीस पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, वो भी कुरान पढ़ता है, लेकिन क्या वो समझता नहीं है? मैंने कहा नहीं समझता है। कहा कैसे? वही हदीस पढ़ रहा है दूसरा। मैंने कहा जी हाँ वही बुखारी, जो बुखारी मैं पढ़ता हूँ वो भी वही बुखारी पढ़ता है, जो मैं इब्ने माजा पढ़ता हूँ वो भी वही हदीस पढ़ता है, लेकिन पढ़ने का फर्क है। इसलिए कि वो पढ़ता और तरह, मैं पढ़ता हूँ अपने नबी की तरह, मैं पढ़ता हूँ सहाबी की तरह, मैं पढ़ता हूँ अहले बैत की तरह, मैं पढ़ता हूँ औलिया अल्लाह की तरह, मैं पढ़ता हूँ मसलक आला हजरत की तरह, और वो पढ़ता भूत की तरह, देवबंद की तरह, नदाओं की तरह। इसलिए जो बंद वाले पढ़ेंगे बंद की तरह पढ़ेंगे, जो खुले आम होंगे वो शेर एक होंगे, लोमड़ी हजार होंगे। लोमड़ियों की हमें फिक्र नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का सफर करता हूँ, अकेले तन्हे तरह जाता हूँ, हमें कोई डर नहीं है। इसलिए कि मैं कहता हूँ शराब चल रहा था, हवा पे छोड़ आया, तमाम मुश्किल कुशा पे छोड़ आया, और घर से मैं पढ़ के चला हूँ आयतुल कुर्सी, घर की हिफाजत खुदा के नाम पे छोड़ आया। और गर्दिश अय्याम का हम वो रुख मोड़ देते हैं, हम वो सुन्नी है नजदियों का पंजा तोड़ देते हैं, और समाने की नजदियों तौहीद की नजरों से मेरे नबी को ना देखना जमाना जानता है। शमसुद्दीन ऐसी आंखें निकाल के फोड़ देता। हदीस वो भी पढ़ता है और हदीस हम भी पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में कोई जवान या बूढ़े में जमशेदपुर गए हो? कोई जमशेदपुर गए आप लोग? टाटा गए? टाटा जमशेदपुर में एक जुबली पार्क है। कौन सा पार्क है सोच बोलो? जुबली पार्क है। ए मुसलमान, जुबली पार्क में अगर ये बूढ़ा लोगों को भेज दिया जाए, इनको क्या पता कि पार्क क्या होता है। इनको खराब बकवास लगेगा, कहेगा बेटा मेरी उम्र नहीं है कि मैं पार्क में घूमूं और ऐशो इशरत करूं, ये मेरा मौका महल नहीं है। जवान लोग समझते हैं। एक बात बताओ, अगर उसी पार्क में खिंजीर को भेज दिया जाए तो खिंजीर क्या तलाश करेगा? जूही को नहीं देखेगा, चंपा को नहीं देखेगा, चमेली को नहीं देखेगा, फूलों का राजा गुलाब को नहीं देखेगा। खिंजीर की आदत है वो कलीस देखना, पेशाब पखाना देखना। ऐसे ही नजदी वहाबियों की आदत होती है, कुरान जरूर पढ़ता है, हदीसें जरूर पढ़ता है, लेकिन उसकी नजरिया हो ये होती है कहाँ नबी का इल्म गैब नहीं है, कहाँ वली की शान में गुस्ताखी लिखा हुआ है, कहाँ वली की बुराई लिखी हुई है, कहाँ नबी का इल्म गैब नहीं है। ये तलाश करता है। याद रखो मुसलमान, जैसे जुबली पार्क में गलीज पखाना नहीं मिलता, ऐसे ही हदीसों कुरान में नबी की शान तो ऊंची लिखी हुई है, नबी की शान नीचे कहीं नहीं मिलेगा, गुस्ताखी कहीं नहीं मिलेगा। ए मुसलमान, फर्क ये है कि लैला को देखने के लिए मजनू की आँख चाहिए, नबी की तारीफ करने के लिए आशिक रसूल की नजर चाहिए। तकरीर अच्छी लग रही है तो बकवास ये बंद कर दे। नहीं इजाजत है? हाँ माशाल्लाह, अब लगता है बूढ़ा लोग सुधरा है। अच्छा भोजपुरी तो यहीं तो बगल बिहार में है। मैं उड़ीसा के जबान में एक शेर सुना देता हूँ इम्तिहान लेने के लिए, समाप्त कीजिए। मानो रो मानो कहो जी
মক্কা মদিনা দেখিবি মনর মন সকাল ভাবুছি মক্কা মদিনা দেখিবি মক্কা মদিনা দেখিবি কালে রাতিরে কালি রাতিরে ও স্বপ্ন দেখিছি কালি রাতিরে ও স্বপ্ন দেখিছি মক্কা মদিনা দেখিবি মনর মন ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ମକ୍କା ମଦିନା ଦେଖିବି मक्का मदीना देखी। ये उड़िया जबान में उड़ीसा की जबान बोलता धीरो पानी रे पत्थर काटी, क्या कहता धीरो पानी रे पत्थर काटी। यदि आपको ये हदीस भल लगुची तापरे आपको हम दू सुभान अल्लाह। ये उड़ीसा की जबान में बोल दिया, लेकिन अब सिमरी की जबान में सुनिए के नामटा तुम्हारे खोते सुंदर अल्लाह के बारे में करा नामटा तुम्हारे खोते सुंदर गफूर रहमान मादेर गुनाह माफ करे दो अल्लाह तुम्हें मेहरबान मादेर गुनाह माफ करे दो अल्लाह तुम्हें मेहरबान। के पापेर बोझर मातेर लोयार पापेर बोझर मातेर लोयार कांद करे बारे बार मादेर गुनाह माफ करे दो अल्लाह तुम्हें मेहरबान। बंगाला भी सुन लिए, उड़ीसा भी सुन लिए। ए मुसलमान पता क्या चला जिस ज़बान से आप अल्लाह उसके रसूल को याद करोगे अल्लाह उसी ज़बान में तुम्हें जवाब देगा। अल्लाह के रसूल उसी ज़बान में तुम्हारे सलाम को समाअत करेंगे। ए मुसलमान गौर से सुनो, सरकार क्या फरमाते हैं कि मुझसे मोहब्बत करोगे, जब तक मोहब्बत मुकम्मल कर नहीं लोगे मुसलमान हो नहीं सकते। और एक हदीस तेजी के साथ मुझे हदीस पढ़ने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज्यादातर हदीस पढ़ता हूँ। मोहब्बत से करो सुभान अल्लाह। हवाला नोट कर लो। मोबाइल इस तरह करोगे तो ठीक होगा, क्योंकि अगर सीधा करोगे जब आप देखने के लगोगे तो फिर कभी इधर आएगा कभी ऊपर चढ़ जाएगा। इसे जब टेढ़ा करोगे तो फिर आप इधर करेंगे तो सीधा नजर आएगा। तो मोहब्बत से करो सुभान।